नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र पांचाल, एमएससी नर्सिंग इन मेडिकल सर्जिकल, स्पेशलिटी इज ऑन्कोलॉजी. ओके, so this is my first class. Okay, so I will tell you something. I will put my videos in a short duration. Okay, within the time limitation, because it will take the more time and no one have time to see much. Okay, and it also creates the more memory, means 4 to 6 GB. That will not possible to upload continuously. Okay, so I will take the videos in a within limiting time duration and will cover all over the concept related to disease. Okay, and that's why I put my channel name is Tiny Time Nursing Classes by Gajendra Panchal. Okay, so I will start the topic with the angina pectoris, that is the disease of the cardiac system. Okay, like we will see from the definition. What is the angina pectoris? Okay, angina pectoris के अंदर definition का क्या होती है? Angina pectoris is the chest pain due to the ischemia of myocardium layer of the heart. It is the imbalance between the oxygen supply. It is imbalance between the oxygen supply and increased demand of the myocardium layer. Okay, let we will see how. This is the definition and we will see in the etiology. Oxygen supply, how it is decreased. Arteriosclerosis and atherosclerosis. Atherosclerosis क्या होता है? It is the plaque formation in the arterial wall, that is the coronary artery. Okay, it is the plaque means it is the formation of the, it is the deposition of the cholesterol, triglyceride plus platelet aggregation, cell tissue diuresis. Okay, that will deposit in the arterial wall and block the area, and further the blood supply does not go properly. Okay, leads to the ischemia. And arteriosclerosis means is the narrowness, stenosis, losing the elasticity and the calcification of the arterial wall. That also leads to the ischemia. Next one, how the increased demand of the myocardium in imbalance. Okay, means increase the sympathetic activity. How increased sympathetic activity leads to the ischemia? There is the two phenomena of the heart, contraction and dilation. During the dilation, more blood supply to the myocardium by the coronary artery, because there is no compression of the coronary artery. Okay, and this is the contraction. If there is contraction, the lack of blood supply rather than to the dilation state in the myocardium layer by the coronary artery. Okay, so more blood supply किस में रिसीव होती है? डायलेशन की स्थिति में. अब देखिए सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट. दिस टाइम क्या होगा? Increase overload to the myocardium, excessive contraction, and this leads to the compression of the coronary artery, that will lead to the ischemia condition. अब ये कौन कौन सी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही, कौन कौन सी? एक्सेसिव स्ट्रेस की कंडीशन में हो गया, एक्सेसिव मोशन की स्ट्रेस कंडीशन में हो गया. अब देखिए ओवर ईटिंग. ओवर ईटिंग के अंदर क्या होता है? जो कि ब्लड सप्लाई मोर जाती है किसके? इंटेस्टाइनल रीजन के अंदर. ठीक है ना. तो वहां पे क्या होता है? यदि वॉल्यूम लो वॉल्यूम, हाइपरवोलिमिया है या फिर एनी काइंड ऑफ द ब्लॉकेज है, तो that will lead to the ischemia. And excessive cold. Excessive cold, how excessive cold? Peripheral vasoconstriction होगा कोल्ड के अंदर. ठीक है ना. To prevent the heat of the body, that will maintain the core body temperature. Okay, so how peripheral vasoconstriction हुआ तो ये क्या लीड करेगा? Increase amount of the blood to the heart and increase the BP. Again increase the workload on the myocardium, contraction, and that will leads to compression of the coronary artery and leads to the ischemia. Okay, and anemia, that will lead also the angina pectoris. Okay, that is the ischemia. Okay, chest pain. So this is the etiology. Now we are going to discuss about the type. There is the type: unstable angina, stable angina, variant angina, refractory or intractable angina, or silent ischemia. Let me see. स्टेबल एंजाइना. स्टेबल एंजाइना क्या होता है? लेस देन 15 मिनट चेस्ट पेन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट के द्वारा रिलीव हो जाता है. ठीक है ना. मेडिकल इंटरवेंशन नहीं चाहिए. ठीक है ना. बट फर्दर वी गो टू द मेडिकल क्यूरीज. ओके, अनस्टेबल एंजाइना मोर देन 15 मिनट पेन होता है,
नाइट्रोग्लिसरीन द्वारा रिलीज नहीं होता है, और एपिसोड्स आते हैं जिनके अंदर 3 से 4, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्टरी एंजाइना के अंदर क्या होता है, इनकैपेसिटेटिंग पेन मीन पेशेंट को असक्षम कर देता है किसी चीज के लिए, ठीक है ना। जहां लेटा है वहीं की वहीं लेटा रह सकता है, उठा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये भी एक सीवियर कंडीशन है, रिफ्रैक्टरी एंजाइना। इसके बाद में वेरिएंट एंजाइना क्या होती है, वेरिएंट एंजाइना रेस्ट की कंडीशन के अंदर है, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रिंज मेंटल, PRINZMETAL, प्रिंज मेटल एंजाइना। साइलेंट इश्यूमिया क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के ऊपर क्या अपने को निकल के आएगा कि एंजाइना है, ST सेगमेंट, डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन, बट the patient says no pain. Okay, this is the types of the angina. Next one we are going to see the risk factor. There is the tobacco smoking, diabetes and overeating. Okay, sorry, high cholesterol, that not tobacco smoking, diabetes and high cholesterol, that also leads to the atherosclerosis formation. Tobacco leads to the stenosis of the artery, and diabetes and high cholesterol leads to the increased amount of the fat and deposition of the cholesterol into the arterial wall. Okay, this is the risk factor. Now we are going to see about the pathophysiology. There is a simple pathophysiology. Due to the etiological factors, decreased supply to the myocardium and increased demand of the myocardium, that will lead to the no blood supply to the myocardium, that will lead to the injuries. There is the injuries, and injury leads to the inflammatory changes. Inflammatory changes leads to the chest pain. Okay, inflammatory changes, edema, local edema in the artery. Okay, so that will lead to the chest pain. This is the pathophysiology. Due to the etiological factor, decreased blood supply, O2 supply and increased demand of the myocardium, injury, inflammation and chest pain. This is the pathophysiology. What is the clinical manifestation? First clinical manifestation is the chest pain. That is the radiating chest pain, left and right side, both sides, mostly the left side, in the tooth, in the chest, in the shoulder, okay, in the jaw, okay, radiating pain. After that, इसके अंदर lightheadedness, giddiness, syncope, this is the loss of consciousness, ठीक है ना। और इसके बाद में रेस्टलेसनेस होगी, ठीक है ना। और टेकिकार्डिया, इंक्रीज बीपी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा डायफ्रोसिस सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, स्वेट ग्लैंड्स को इंक्रीज स्टिमुलेट करती है टू परस्पायरेट, मीन स्वेट ग्लैंड स्वेट निकालने के लिए, ठीक है ना, डायफ्रोसिस एक्सेसिव। इसके बाद में अपन देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपन देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर अपन क्या देखेंगे, पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है ना। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे क्या लाइफ स्टाइल पैटर्न है, एक्सेसिव फैटी फूड खाता है, स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल कंजप्शन करता है, दैट विल ट्रिगरिंग द फैक्टर्स इश्चीमिया, ओके, ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऑफ द इश्चीमिया। सो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या देखेंगे, साइन सिम्टम लाइक दैट द चेस्ट पेन मोस्टली, ओके। एंड नेक्स्ट वन अपन देखते हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर अपन देखते हैं ईसीजी के अंदर क्या शो होगा, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, ओके, एंड द टी वेव इन्वर्जन, ओके, दिस इज द ईसीजी। इसके बाद में अपन चलते हैं पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, कार्डियक कैथेटर के थ्रू या तो रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी लेंगे, मोस्टली रेडियल आर्टरी लेते हैं, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज यहाँ पे इंजरी कम होती है और प्रेशर रादर देन रेडियल आर्टरी कम, फीमोरल आर्टरी कम होता है रेडियल आर्टरी में। तो यहाँ पे क्या होता है, कैनुला के थ्रू, गाइड वायर के थ्रू हेड के अंदर कोरोनरी आर्टरी तक कैनुला डाला जाता है, वहां पे डाई इंजेक्ट की जाती है। कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी के द्वारा अपन ने देखा जाता है कि जो ये कोरोनरी आर्टरी है इसके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर आगे है कि नहीं है। यदि यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, और यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो, और नहीं होगा तो आगे ब्लड सप्लाई जाएगी। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि भाई यहाँ पे ब्लॉकेज है, ओके। दिस इज द परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसके बाद अपन लिपिड प्रोफाइल देखते हैं। इसके अंदर अपन एसडीएल और एलडीएल का लेवल देखते हैं। एसडीएल और एलडीएल लेवल क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल अपने ब्लड के अंदर उपस्थित प्रोटीन के साथ में
क्रिया करके लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्रिएट करता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैसे क्रिएट होता है? सैचुरेटेड फैट वगैरह खाने से। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैसे होता है? अनसैचुरेटेड फैट खाने से, ठीक है ना, गुड फैट खाने से, ठीक है ना। उसका लेवल अपने को पता किया जाता है एचडीएल और एलडीएल का लेवल ब्लड टेस्ट के थ्रू। सॉरी। इसके बाद अपन देखते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन और होमोसिस्टीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, जो सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर, दैट विल आल्सो ट्रिगरिंग टू लीड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ओके, इसका नॉर्मल लेवल होता है 1 से 3 नैनोग्राम पर डीएल। और जो होमोसिस्टीन होता है वो भी क्या होता है? एक एमिनो एसिड होता है जो कि क्या करता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है 12 से 15 माइक्रोमोल पर लीटर। ओके, माइक्रोमोल पर लीटर। इसके बाद अपन देखते हैं वेस्कुलर इको माने अपन स्ट्रेस टेस्ट देखते हैं। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है? स्ट्रेस टेस्ट के अंदर क्या होता है? टारगेट हार्ट रेट अचीव करी जाती है, ठीक है ना, जो कि एक नॉर्मल हार्ट रेट से 80 to 90% एक्स्ट्रा होती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या किया जाता है? यदि स्ट्रेस टेस्ट के दौरान ट्रेडमिल के ऊपर या फिर ड्रग इंड्यूस स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है? जो एक्सेसिव हार्ट रेट होती है, यदि उस दौरान चेस्ट पेन होता है या फिर स्ट्रेस टेस्ट पूरा करने के बाद में ईसीजी के अंदर कोई वेरिएशन आता है तो ये क्या शो करता है? देयर में बी द इश्चीमिया। ओके, तो स्ट्रेस टेस्ट क्या हो गया? ईसीजी को रीड आउट किया जाता है। यदि ये पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट आता है तो आगे फर्दर पीटीसीए के लिए और अदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए अपने को डायरेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेस टेस्ट हो गया। इसके बाद में अपन ने देख लिया हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकलाइजेशन, पीटीसीए, लिपिड प्रोफाइल, सी रिएक्टिव प्रोटीन, होमोसिस्टीन, ब्लड बायोमार्कर्स, इको और ईसीजी एंड स्ट्रेस टेस्ट। एंड नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? साइन सिम्टम को रिलीव करना, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। ओके, सो हियर द मैनेजमेंट इज द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अपन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देंगे अपन वेसोडाइलेटर, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रेट। ओके, सेकंड और अपन देखते हैं एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट। एंटीप्लेटलेट के अंदर एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल, ठीक है ना। और एंटीकोगुलेंट के अंदर अपन देखते हैं हिपेरिन, जो कि ब्लड थिनर होता है, ठीक है ना। एंड इसके बाद में बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे? सिंथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा? मायोकार्डियम के ऊपर ओवरलोड नहीं होगा, कंप्रेशन नहीं होगा कोरोनरी आर्टरी का, ठीक है ना। इसके अंदर एग्जांपल से बीटा ब्लॉकर एटिनोल, प्रोपेनोल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर अपन देखते हैं निफिडपिन। ओके, एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर अपन ने नाइट्रोग्लिसरीन बताई दिया, ठीक है ना। तो ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी करेंगे तो उस दौरान एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, उसके अंदर स्टेंट और बैलोनोप्लास्टी, ठीक है ना। ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट अपन वहां पे कोरोनरी आर्टरी के अंदर जहां पे ब्लॉक हो जाएगा वहां पे डाल देंगे, बैलून को डायलेट करेंगे और जो भी यहाँ पे प्लाक है उसको हटाने की कोशिश करेंगे और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट जो कि मेटल का होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं वहां पे, ठीक है ना, प्लेस कर देते हैं। ओके, जो कि पीटीसीए के थ्रू होता है। इसके बाद सीएबजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कब करते हैं? जब बहुत ज्यादा ब्लॉकेज होता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति को अपन कैसे रिलीव करेंगे? सीएबजी टू टाइप की होती है। एक तो होती है ऑफ पंप, एक होती है ऑन पंप। ऑफ पंप के अंदर क्या होता है? हार्ट कोई मशीन के द्वारा नहीं जुड़ा होगा, मीन यहाँ पे हार्ट लंग मशीन नहीं यूज होगी, ठीक है ना। और यहाँ ऑन पंप मीन हार्ट को पंप के ऊपर ऑन पंप रखा जा रहा है, मीन हार्ट लंग मशीन यूज हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए ऑफ पंप मतलब बीटिंग हार्ट सर्जरी है। इसके अंदर क्या होगा? एक ऑक्टोपस स्टेबलाइजिंग डिवाइस होता है। ऑक्टोपस स्टेबलाइजिंग डिवाइस होता है जिसके थ्रू क्या होता है? हार्ट को लोकली स्टेबलाइज किया जाता है और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग परफॉर्म की जाती है। और ओनली हार्ट लंग मशीन हार्ट बीट आउट नहीं करेगा तो प्रॉपर्ली सीएबीजी परफॉर्म हो सकती है। अब सीएबीजी के अंदर क्या किया जाता है? ये कोरोनरी आर्टरी होगी, ठीक है ना। और इंटरनल मेमोरी आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी या इंटरनल प्रोस्टेटिक आर्टरी को जहां पे यहाँ पे मान लो ब्लॉकेज है तो इससे आगे एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। एक तो ये हो गया। सेकंड वन हो गया ग्रेट सिपेनियस वेन। ग्रेट सिपेनियस वेन का ग्राफ्ट लेंगे, यहाँ पे वो इंटेक्ट नहीं होगी, वहां से अपन उठाएंगे ग्राफ्ट और यहाँ पे इंटरनल मेमोरी आर्टरी, थोरेसिक आर्टरी के केस में इंटेक्ट रहेगी।
तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से, असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा से डायरेक्टली जहाँ पे ब्लॉकेज है उससे आगे एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है. तो दिस इज दी surgical management. Okay, so just give a little review on the my angina pectoris. This is the chest pain disease due to the ischemia of the myocardium. It's the imbalance between the oxygen supply to the myocardium and increased demand of the myocardium there. Okay, after that अपन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं. ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं. हेल्थ एजुकेशन में अपन दे सकते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन कैसे यूज करती है, इसके अंदर क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं. नाइट्रोग्लिसरीन लेते टाइम पे आपको क्या होता है, प्रॉपर माउथ गीला होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, सिप ऑफ वाटर ले सकते हैं आप. ठीक है ना, और कुछ चीज नहीं करना है, प्रॉपर्ली जब तक डिजोल्व नहीं होती तब तक रखना है. 3 मिनट तक तो अपने को रखना है, प्रॉपर्ली डिजोल्व होने देना है. ठीक है ना, इसके बाद में आप जो इसकी ओरिजिनल पैकिंग आती है कि वोलेटाइल ड्रग है तो उसको वहीं की वहीं रखना है, अलग से कोई पैकिंग में नहीं रखना है. ठीक है ना, और डार्क एरिया में रखना है, जिससे क्या होता है वो ड्रग डिजनरेट नहीं हो. 6 मंथ है उसको वापस रिप्लेस कर देना है. ठीक है ना, और एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई हाई फैटी डाइट नहीं खानी है, हाइपरग्लाइसेमी नहीं करना है. ठीक है ना, और डायबिटीज के अंदर प्रॉपर प्रिकॉशंस रखने हैं, प्रॉपर टाइमली मेडिकेशन रखने हैं, एक्सेसिव स्टेनिस कंडीशन नहीं रखनी है. यदि डॉक्टर से प्रिकॉशन लेके अपन नाइट्रोग्लिसरीन लेके कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. ठीक है ना, और रनिंग वगैरह एक्सरसाइज नहीं करनी है, नॉर्मल योगा वगैरह करना है. ठीक है ना, तो ये अपन हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं. नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर द चेस्ट पेन ड्यू टू द इश्चेमिया एज एविडेंस बाय द लेवाइन साइन और क्लिंचिंग द चेस्ट. ओके, सेकंड वन, knowledge deficit related to the disease. Okay, third one, anxiety related to the prognosis of disease. Okay, दिस इज द नर्सिंग डायग्नोसिस. एक लेवाइन साइन मैं बताना चाहूंगा. लेवाइन साइन क्या होता है, चेस्ट पेन को अपन लेवाइन साइन के थ्रू कैसे करते हैं, पेशेंट चेस्ट को ऐसे पकड़ के रखता है, क्लिंचिंग फिस्ट. ओके, तो इसको क्या कहते हैं, लेवाइन साइन. सो दिस इज द माय एंजाइना पेक्टोरिस हैव कंप्लीटेड. इफ यू हैव एनी डाउट और एनी type of queries, please comment and please like and subscribe my channel. This is my first video, maybe there will be any kind of mistake. So please write down in my comment box and I will take the class in limited time duration. This is my very fast speed. Okay, so thanks to watching and thanks to be patient. Okay, thanks.